مسلو بوم بکیز پنن پویچ آسال گئی یہ پنس پویچ نس انسان ہیکا ونس تمو چھ ہیکا بیکس پویس ونس کے لیے آئی ہوں، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے مہندی لگاؤں، اس کو خود روانہ کروں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے جو توبوت ہے اس کو بھی خود روانہ کرنا پڑے گا۔ یہ خود ٹینٹ دے رہا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کچھ دن پہلے جاوید صاحب کی خوشی میں آئے تھے، آج وہی لوگ جاوید صاحب کے غم میں آ رہے ہیں، جاوید صاحب کے مصیبت میں آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان مشتاق علی بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین نیوز نیٹ ورک۔ ایک دکھد بھری کہانی لے کر پھر ایک بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرے پیچھے مکان ہے، یہ مرحوم محمد صدیق شیخ صاحب کا ہے، جو ایکچولی ایک بلائنڈ شخص تھے اور جن کا انتقال 2016 میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو فیملی ہے وہ گزارا کر لیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 2 سال کے بعد محمد صدیق شیخ صاحب ہے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اب اس گھر میں صرف 2 بچے یعنی جاوید احمد اور اس کے بعد ایک بہن بچ جاتی ہے، صرف بھائی بہن ہی اس گھر میں رہتا ہے۔ جاوید احمد شیخ صاحب جو ہے، اس نے باپ کے علاج کے لیے محمد صدیق شیخ صاحب کو دلی لیا، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں وہاں لیا، لیکن بالآخر جو محمد صدیق شیخ صاحب ہے وہ اس دنیا سے کیا چلے گئے۔ لیکن اب آش تھی، ماں پہ آش تھی کہ شاید جاوید احمد جو ہے وہ اب ماں کی خدمت کرے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ماں بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس گھر میں صرف بھائی اور بہن رہتا ہے۔ تو جاوید احمد جو اس لڑکی کا بھائی ہے، وہ کچھ سال کے بعد اپنی بہن جو ہے اس کو حوالے کرتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس گھر میں صرف ایک ہی بچہ تھا، جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جاوید احمد شیخ صاحب کی۔ تو جاوید احمد شیخ صاحب نے چھوٹا سا بزنس یونٹ کھول کر اس گھر کے لیے بہت زیادہ محنت کی، اور یہ لکڑی کا مکان تھا، لیکن آج یہاں پہ اینٹوں کا مکان ہے، یعنی گھر بسایا۔ پہلے تو یتیم پہلے سے ہی چلا گیا، یتیم بن گیا، ماں بھی چلی گئی، اس کے بعد جو باپ ہے وہ تو آلریڈی چلا گیا تھا۔ اب شاید یہ سوچ کر جاوید احمد شیخ جو ہے وہ دن گزارتا تھا کہ شاید میرے بھی دن آنے والے ہیں، کیونکہ کچھ ہی دنوں پہلے جو جاوید احمد شیخ ہے لیکن اس کی شادی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ شامیانہ ہے جہاں پہ یہاں کے مقامی لوگ آئے، جہاں پہ مقامی لوگوں نے خوشیاں منائی، کیونکہ جاوید احمد یتیم جاوید احمد شیخ صاحب جو ہے اس کی شادی اسی شامیانے میں تھی۔ لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جو ہمارا یہاں پہ دلہا ہے جاوید احمد شیخ، وہ 3 دن زندہ رہے گا، اس کے بعد وہ بھی اپنے باپ کے پاس چلا جائے گا یا اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ بڑی دکھد کہانی یہ ہے کہ جاوید احمد شیخ صاحب شادی کرنے کے بعد 3 دن زندہ رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ محلہ ہے، میں موجود ہوں ایگزیکٹ، یہ واورا ایریا ہے وادی لولاب کا۔ یہ ایریا ہے، یہاں پہ اس وقت اس بستی پہ ماتم چھایا ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں۔ جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں وہ بالکل درد ذہ میں مبتلا ہے۔ یہاں پہ مائیں، یہاں کی بہنیں، یہاں پہ چھوٹے بچے بہت زیادہ ترس رہے ہیں جاوید احمد شیخ کے لیے۔ اور جاوید احمد شیخ کے لیے ایک نئی بہن، جی ہاں اس کی بیوی اس گھر میں آئی تھی اس بات کو لے کر کہ میں اب شادی کروں گی، میں اب نئی زندگی جو ہے وہ میں سٹارٹ کروں گی۔ لیکن اس کی بیوی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں پہ مہندی لگ جائے گی اور اس کے بعد 3 دنوں کے اندر ہی جو جاوید احمد ہے، جو میرا دلہا ہے، وہ اس دنیا سے چلے۔ جو یہ شامیانہ ہے جہاں پہ اس وقت بستی کے لوگ بیٹھے ہیں، جہاں پہ بہت سارے مائیں بیٹھے ہیں جو اس وقت رو رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آج سے پہلے 3 دن آئے تھے۔ یہی شامیانہ ہے، یہی ٹینٹ ہے جہاں آج سے پہلے 3 دن خوشیاں منائی تھی، اور آج یہی ٹینٹ کچھ دن پہلے یہاں کھانا کھاتے تھے خوشی کا، لیکن آج یہی لوگ یہاں ماتم منا رہے ہیں۔ میں جب کبھی کبھار شادی ہوتی ہے تو ہم جو وہ پکانے کی جگہ ہوتی ہے اس کو اوپر چھت لگاتے ہیں، اور کشمیر میں اس کو چڑ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، جاوید احمد نے اپنے ہاتھوں سے اس چڑی کو بنایا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چڑی یہاں ہی رہے گی، اور آج خوشی میری ہے، آج میری شادی ہے، آج میں خوشی کے مقام میں یہاں آیا ہوں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ چڑی ایسے ہی رہے گی جہاں پہ صرف اس کے موت کے چہارم کی چائے کھانا ہوتا ہے،
वो यहाँ ही बनाना पड़ेगा, ये मालूम नहीं था। यही मौत है, मौत किसी का इंतजार नहीं करता। तो चलो जो यहाँ पे अब एक ही अब बात करें तो किससे करें, क्योंकि ये जो ये घर है ये वीरान रह गया है, ये अब वीरान पड़ा है। अब सिर्फ एक ही बहन यहाँ पे इस घर में रह चुकी है, क्योंकि बहुत करीबी है, अपने भाई के साथ बहुत प्यार है। तो उसी से बात करते हैं कि असल में क्या वजह बनी। तो नाजरीन, ये मेरे साथ वो बहन है जिसका एक ही भाई था, जिसका सिर्फ का बाप था, वो पहले से ही इस दुनिया से चला गया था। अब ये बहन, इसकी शादी हुई है, ये इसीलिए यहाँ आती थी कि मैं अपने भाई के पास आऊं, लेकिन हमारे खुद जो जज्बात है, जो हमारे खुद इमोशंस है, हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये बहन है जो इस वक्त यहाँ रो रही है, यही एक बहन थी जावेद अहमद की, जो इसीलिए इस मकान, इस घर में आती थी, इस आश को लेकर कि बाप का साया तो हमसे ऑलरेडी उठ गया है, मां का साया तो ऑलरेडी उठ गया है, लेकिन अब मेरा एक ही भाई है, और जो मुझे, अगर मुझे कभी भी खुशी गम हो तो यही भाई मुझे पेश आएगा, यही भाई मुझे सामने आएगा, यही भाई मेरी हेल्प करेगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जावेद अहमद साहब जो है, शादी के सिर्फ 3 दिन जिंदा रहने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। ये बहन इसीलिए आई थी कि यहाँ पे मैं अपने भाई के लिए आई हूँ, उसको खुद अपने हाथों से मेहंदी लगाऊं, और उसके साथ साथ जो दुल्हा है उसको खुद रवाना करूं। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि मुझे जो तोबूत है उसको भी खुद रवाना करना पड़ेगा, ये इस बहन को मालूम नहीं था। तो मेहरबानी करिए सब करता है दूसरे का मेहरबानी बहन समझ तक सुनाओ। कृष्णा शाइस्ता तुझी अंदर कर गुजराया होता है। फादर गुजराए 18 मार्च 2006 मज, मदर गुजराए 11 जुलाई 2020 मज। खानदर फादरन कोरमुत किन जावेद सबन कर? मे कोर जावेद सबन खानदर करते मे कोर खानदर कोर मे नवंबर 17 खानदर पत गुजराए मे जुलाई मज गुजराए 7 रेत तम दह मे खानदर कर मदर गुजराए। अच्छा मे वन तो जावेद सबस यव खानदर, इम सुंद इस खानदर गो, इम कोरा पन्ने मर्जी पे कि घर को कोरा खुशी सान? इमस कोर पन्ने मर्जी पे खुशी सान। खानदर करनस मन मा गो जुल्म इमस या ना या ये इमस खानदर कोरक तमन मा गो जुल्म? तमिस न गो न जुल्म कहीं तिल कतस बरे महरज बरन 60,000 बरन दूर ओन खानदार सोन ओन सोरी कह ओनस ये आना सोरी कह ओनस A to Z ओनस सामान। अच्छा खानदर पत ये महरी ते आयात घरस मज, पत क्या वाका गो, किस बज गो ये शाम 9 बज अगर वाका गो, क्या गो वाका? वाका गो ये गत खान 3 दोन ये युत त्रेमि दह कर तम दह त्रेमि दह वो गई घर तो वो दिस मे तर वर गो अस्तान असल पे गो लगन पलो लगन कमीजार लगन असल पे तौर आ वापस तो खानदारी आय वापस आय अंदर लज पलो बलान तो लोगन ट्रैक दोन मे योतान कम योतान गो और आ तो ये गो तकरीबन 6:30 اہن حظ آ شام اہن حظ آ 6:30 اور حظ آ یہ تو دوٚپُن مےٚ دوٚپ مےٚ حظ ووٚن ماستٕر بیٚنہِ مےٚ ژٕ کر أمِس فون دوٚپُس أمِس اَن مےٚ حظ چھِ نِچ اَکھ حظ تہٕ مےٚ دوٚپمَس أمِس خٲطرٕ اَن ڈایپَر أمۍ حظ ووٚن أمِس دوٚپمَس کیٛاہ وَنان ژٕ اَن دوٚپُس اَن پانَے ییٚتٮ۪تھ چھِ ییٚکیٛاہ دُکان نیر اَن ژٕ پانَے بہٕ حظ گٔیَس ڈایپَر اَننہِ اورٕ حظ آیَس بہٕ واپَس تہٕ یہِ حظ اوس نہٕ اوٚتانۍ آمُت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اورٕ حظ آو یہِ واپَس تہٕ اوس حظ ییٚتٮ۪ن حظ بِہِتھ تہٕ ییٚتہِ حظ ٲس یہِ ہہ کیٛاہ چھِ وَنان ماستٕر بیٚنہِ حظ بیٚیہِ حظ لٔڑکہٕ زٕ حظ تِمَن نِش حظ اوس بِہِتھ تہٕ پَتہٕ حظ توٚر یہِ اَپٲرۍ اَسہِ حظ گٔے یہِ چھِ حِساب وِساب لیکھان کینٛہہ تہٕ اَتہِ حظ اوس یہِ پیوٚمُت حظ اہن حظ آ نہ حظ نہ بت وت نہ کھیوٚمُت نہ حظ نہ بَتہٕ حظ اوس کھیوٚنٕے توٚتام اہن حظ آ یہِ حظ اوس ییٚمہِ پَتہٕ حظ نیوٗ اَسہِ سَگام گۄڈنٮ۪تھ سَگام پٮ۪ٹھ حظ کٔرِکھ أسۍ رٮ۪فر حظ ہنٛدوار پٮ۪ٹھ حظ کٔرِکھ یور حظ SMHS
डॉक्टर साहब क्या वना मतलब अमिस क्या प्रॉब्लम गई हार्ट अटैक गोसा बेकी प्रॉब्लम गई सा इन सना ना वंकी सोच ना जाना वंकी पोस्ट तो क्या शो यसा क्या तो उसे अकुई बोय कुछ समझा मैं छन के तन बकस निजस मैं पेतान बचन मसाफिर अल्लाह ताला यस आजमावा छ तस पे ज्यादा आजमाइश तस त्रावन इंसान मसाफिर रुकने से ना इस से बोय यम छी से बोय मैं नजलो पम फादर तन गुजरो मदर वो गुजरो तय Mother is gudre, father is gudre tonas, ये चेचा चलेtas, मगर इन सुधी भी सोचस वही मोज लाता लगती, वही अच्छे टूरिस्ट मज मोज आता है पढ़, मौजूद है ना। क्या ये उसा दिमागी उसा ठीक टेंशन दिमागी ठीक है ना तो उसे नष्ट करने की थी ना अगर सिगरेट चाहिए कहाँ या तो चाहिए सिगरेट उसने पर चला तेज वो नीचे सोरी है तेज गांव इनसे बालों दी गवाईस बेमसोस करे कि ड्रग्स मसोस करे या कि मसोस करे का सीरियस बने चाहिए खानदरस मा गो ज्यादा खर्च खानदर लोड मत ना पन घर उसा असल पट चलावा पन घर असल पट चलावा ओत्रस करन दपन ये वाल पिटिनस करन पिटिंगस करन टोलस लगायन मे कतस पाई तिमिस कतस पाई मे छ चलन तो इस खानदर पे येती यन पे खानदर यन पे मे मदर गुजरानस तन पे छस बेती बिच न गरस गमसी तन पे वो क्या तहस अपील वो क्या तहस सो अपील छ ई अगर इमी मुजुत योर अख आइस तहस दुखस म शरीक गसन खतर आई बैन टीम योर इस तुक वन मे रूद या दुनिया मज कहां तुम तह बय अस तह बय यह अल्लाह ताला आसान थोमुत नसीबस मज वन तु क्या एडमिनिस्ट्रेशन ताम छो तुम कत वतान अच्छा पुलिसन करा इनक्वायरी ठीक कर करान पुलिस करा अस वन यी कि अगर कोर यो क्या तुवा शक बसा अमिस कोर कंस शक बसा कि मे न शक बसा कि मगर कहें वन मतलब ये पान गुजरिया कुछ दबाव को गरस अंदर गुमुत मतलब ये गुजरिया गरस अंदर ये मौजूद सरी अच्छा गो तुम मतलब वो दपान इंसाफ वन पुलिसन कर वारिया असल कार्रवाई पुलिस करा कार्रवाई तुम शुक्र गुजार ये तमन ताम फॉर्मेलिटी तुम करा चलो नाज़रीन आपने दुखद भरी कहानी सुनी ये वो बहन है जिसका पहले बाप चला जाता है माँ चली जाती है फिर अकेला ही भाई था जावेद अहमद वो भी उस मौके पे चला गया जब उसकी शादी थी उसके बाद शादी के सिर्फ 3 दिन गुजरने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है चलो मरहूम की नाज़रीन ये मेरे एक यहाँ पे साथी एक है जो जावेद शेख साहब जो है ये उसका एक क्लोज रिलेटिव है क्योंकि बात यहाँ पे करें किससे करें बाप भी चला जाता है माँ भी चली जाती है खुद भी चले जाते हैं बहन से तो बात हुई सर आपका नाम क्या है मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल शेख मैं जावेद अहमद शेख का कजिन ब्रदर हूँ अच्छा ये जो आपको सदमा पहुंचा ये जो आपको मुसीबत आया आप यहाँ पे आपके घर पे तो मुझे बताइए कितने बजे का वाक़ा हुआ और क्या हुआ ये वाक़ा शाम के 9 बजे के आसपास आया है और जो ही हमने में आप आई है और इनको कैप्चर करके गाड़ी में बैठा के सीधे हम हॉस्पिटल रवाना हुए हैं और वहाँ से फिर हमें हंदवारा के लिए हंदवारा से फिर हम श्रीनगर तक का सफ़र रहा है फिर वहाँ पुणे 11 बजे फिर वहाँ से बेहोश पड़ा था वो घर में ही पड़ा था बिल्कुल घर में ही पड़ा था क्या ये ड्रग्स मत करता था क्योंकि कभी कभार हमने देखा है क्या किसी और कोई साइकोलॉजिकल टेंशन मत था क्या कोई डिस्ट्रेस मत था एंजाइटी मत थी जहाँ तक ड्रग्स की बात है वो आप पूरी सोसाइटी से भी पूछ सकते हो कि इसका सोसाइटी में एक नाम था जावेद अहमद शेख का एक नाम था यहाँ पर पूरे जितने भी हमारे नेबरिंग विलेजेस भी हैं अगर इनसे भी आप इसके बारे में दरियाफ्त कर सकते हो कि उसका एक बहुत बड़ा नाम था यहाँ पे क्योंकि एक छोटे जीरो से स्टार्ट करने वाला बंदा था कि बिजनेस में इस वक्त इसकी बहुत आपस टच कर रहा था मगर बदकिस्मती की वजह से ड्रग्स की बात ही नहीं है ये आप किसी से भी पूछ सकते हो और इसका तो मुझे क्या आपको अप्रहेंशन है कि किसी का हाथ इसमें हो सकता है तो ये तो अप्रहेंशन की बात ही है क्योंकि अगर 2 दिन पहले अच्छी तरह से हमने खुशियाँ मनाई हैं खुशी मनाने के बाद तो ये सदमा हमें हुआ है और बिल्कुल अचानक हुआ है ताकि हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करना चाहते हैं कि इस केस की जड़ तक जाए यानी कि इसकी तहकीकात अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि जो इसमें जितने भी किल्प्रेट्स होंगे वो हमें यहाँ पे पड़ोसी में कहीं लैंड डिस्प्यूट तो नहीं था कहीं पड़ोसी में किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी बिल्कुल ये सीधा साधा बंदा था किसी के मामले में दखलंदाजी नहीं करता था एक घर उजड़ा हुआ है और इसमें कुछ वो दाद दिशाई कराए ताकि जो इसके जो बंदे इसके अंदर मुलविस होंगे या कौन को होगा तो हम इनको सजा देनी चाहिए की शादी हो गई है 3 दिन के बाद पता नहीं है किस डिप्रेशन के कारण ये घर में ही अंदर इसने इतना बड़ा हादसे का फासला लिया है और हमारी गुजारिश है
एसपी साहब से और सौगाम पुलिस ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। इंशाल्लाह वो आगे भी हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे और इस केस के किसी भी हद तक जाना चाहे पुलिस को तो वो जा सकते हैं। किसी से भी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कोई भी आदमी हो, उससे वो पूछताछ करने हम सब तैयार है इसके लिए। भरोसा है हाँ, हमें बहुत भरोसा है कि अभी तक कार्रवाई बहुत अच्छी हो। आपसे भी रिक्वेस्ट है और गवर्नर साहब भी कि गरीब बच्चा है, इसका ना बाप का साया है ना माँ का, एक बहन पड़ी है अभी घर में और कोई नहीं है खुदा के सिवा। इस बेचारे को कौन सा हादसा हो गया, किसने इसको डिप्रेशन में लाया, किस कारण इसका हादसा हो गया, मेहरबानी करके हम दो हाथ जोड़ते, हम भी नौजवान हैं, किस कारण इसका ये हादसा हो गया, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट। तमाम मुसीबत इस बस्ती पे पड़ा है, यहाँ मकामी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सरपंच साहब है, उससे मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, ये सदमा यहाँ पे पूरे बस्ती के लिए है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, देख बात मैं बताऊंगा कि जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक है, उठना बैठना है, तो वहाँ में ये लगता है कि ये खुदकुशी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑल रेस्पेक्टस वेल था, बेटर था। तो हमें ये इत्माल है कि ये प्लानर है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी इस वक्त है, तो उस हिसाब से ये प्लान किया गया है और ये हादसा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो अभी तक जो इंक्वायरी हुई पुलिस की ओर से, क्या उन्होंने अच्छे से कॉपरेट किया? बिल्कुल, पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है। एसओ साहब, डीएसपी साहब, मतलब उसके जो बाकी अफसर्स हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, वो अच्छे ट्रैक पर जा रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और हमें इनमें पूरा भरोसा है कि वो शायद 2-3 दिन तक इस मामले को हल करेंगे। अच्छा, और एक बात आपसे जानना चाहूँगा, आपकी क्या, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी अपील क्या रहेगी? क्योंकि आपकी अपील जो है वो मादमाना अपील होनी चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू भी है। तो आपकी अपील क्या रहेगी जो यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस हो, चाहे डी साहब है, चाहे एसपी साहब है, क्या अपील रहेगी? देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है हायर ऑप्स को भी, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसएसपी साहब हैं यहाँ पर, हमारे डीएसपी साहब, एसडीपीओ साहब है, एसओ साहब है, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तो अब पूरी तहकीकात होनी चाहिए और मतलब तो ये दुखद भरी कहानी थी जो हमने आज आपके सामने रखी, और ये वावरा कुपवारा से हमने ये स्टोरी आज नशर की। अब जावेद अहमद साहब जो है, अल्लाह उसकी मगफिरत करें, चला गया इस दुनिया से। जब मुसीबत आता है तो वो इस कदर आता है कि अल्लाह आजमाता है, मुसीबत डालता है, फिर आजमाता है, मुसीबत डालता है, फिर आजमाता है। हाँ, अगर जावेद साहब को किसी ने कत्ल किया है, अगर जावेद साहब खुद इस दुनिया से चले गए हैं, वो तो एक बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं, यहाँ पे मकामी लोग कह रहे हैं, अच्छा खासा माइंड रखने वाला शख्स था, नॉलेज भी अच्छी थी, लिटरेट भी था, लेकिन अचानक हुआ तो क्या हुआ। लेकिन ये किसी पे अभी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। अब हमारा काम था कि हम स्टोरी उजागर करें। अब यहाँ पे जो हमारे एसएसपी साहब है, डीएसपी साहब है, वो इसकी फेयर इंक्वायरी करें। ऐसा निकला जिसने ऐसा काम किया होगा तो दे शुड पुट हिम अंडर बार्स। आप बने रहें IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मजीद